अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहसिन मेंटोर की एक और एपिसोड के साथ आज हम हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, मिस फरा आफ्ताब। थैंक्स मिस फरा फॉर योर टाइम। और आपने हमारी पिछली एपिसोड्स में भी देखा होगा, हम काफ़ी इंसिस्ट करते हैं कि यूथ के लिए, और स्पेशली जब हम ओवरऑल बात करते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो यंगस्टर्स को हम फोकस करते हुए जब उनकी काउंसलिंग हो रही हो, उनकी मेंटोरिंग हो रही हो, तो उस पर बात कर सकें। सो आई रिक्वेस्टेड मिस फरा, थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम। कैसी हैं आप? Walaikum assalam. I'm good. Thank you for inviting me. Alhamdulillah, I'm doing really well. And I think, to be very honest, considering हम जिस region में रहते हैं, specifically in Pakistan, mental health जो है वो it's still a taboo to talk about. बहुत सारे हम्म। लोग mental health professionals के पास नहीं जाना चाहते. So I think it's an important topic to discuss. And बहुत सारी awareness अभी भी I think we should do to create the insight regarding mental health है क्या, what are the issues that people are suffering and how can we handle it together, because as a society हमें grow करना है तो उसके लिए बड़ा important है कि हम awareness create कर सकें. ग्रेट। मिस फरा, आपका अ, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हमारे सुनने वालों के लिए बताइएगा। आपकी एकेडमिक जर्नी कैसे रही, और फिर प्रोफेशनली आप किस तरह से अपने इस साइकोलॉजी के प्रोफेशन को लेके चल रही हैं? Okay, so to be very honest, ऐसा नहीं था कि बचपन से मैं psychologist बनना चाहती थी. It was I was like a engineering student previously. And when I was in my like second year, I remember I had this teacher who did a little course on metaphysics. और मुझे याद है कि उनकी क्लास में she did little, वो एक बच्ची को पेन था और उन्होंने कुछ distraction वाली exercises की, and then she started to feel better. मुझे when I started reaching out for universities, I remember I went to her and I said कि मुझे वो करना है that you have studied. And she said metaphysics है, और metaphysics पाकिस्तान में भी इस like diploma है, इसकी कोई proper field नहीं है. And then she suggested me, why don't you explore psychology? I हम्म। remember I wasted my 6 months just to get into psychology, because उस time पे I'm talking about like quite a long time back. So उस टाइम पे साइकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जिन लोगों का कहीं और एडमिशन नहीं होता ना, वो साइकोलॉजी में जाते हैं, सोशल साइंसेज में जाते हैं. So that's how I got into psychology. In my bachelor program, we were just 7 students in the class. इतना short हमारा course वो like batch था. And a lot of time I remember my maths teacher that I was very good at maths, or when I told him that I'm in psychology and I'm doing psychology, uh, I went to see him in the hospital, और वो literally लेटे हुए थे और वो बैठ गए कि ये psychology तो वो पढ़ता है जिसको कहीं admission नहीं मिलता, you're wasting your life and all of that. But to be very honest, I'm really happy in the field that I'm in. I did my master's in clinical psychology, and when I started to see people, कि एक ही घर में रहने वाले लोग, एक ही इंसिडेंट को एक्सपीरियंस करने वाले लोग, their responses are very different, and they are dealing with the same situations in a very different way. So उससे अंदाजा होता है कि साइकोलॉजी क्या है, माइंड साइंसेस क्या है, how your body is connected with your mind, how one thing relates to another. So that's how I got into psychology. And today, if I look back, I feel that I think that was the best decision of my life, because I totally cherish the field that I'm in. I love it. And to be very honest, I don't feel that I'm working. मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपका पूरे दिन ऑन एंड ऑफ सेशन चल रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस नहीं होता, यू डोंट फील ड्रेन्ड entirely कि आई एम वर्किंग. एंड honestly speaking, जो यहाँ सुन रहे हैं उनके लिए भी कि इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग फील्ड, कंसिडरिंग कि कई दफा मैंने ऐसा भी नोटिस किया है कि मेरे सेशन में कोई क्लाइंट आया और वो लिटरली दे आर क्राइंग, सॉबिंग, वेरी डिप्रेस्ड, एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन, लिटरली वो 60 मिनट्स के बाद वही बंदा वो रूम छोड़ के जा रहा है विद अ वेरी डिफरेंट मूड, लाइक दे आर हैप्पी, स्माइलिंग, एंड दे आर फोकसिंग कि भाई नेक्स्ट वीक पूरा कैसे चलेगा.
So it's a very rewarding field, and you really get to see the results immediately as well. So yeah, I mean, that's how I got into psychology, and that's how I'm pursuing it. Um, I've been like into teaching field as well since 2017. I have taught in Bahia University as faculty. I am a visiting faculty at Ziauddin University as well. And similarly, I've conducted different kind of workshops and trainings. Currently, I'm a clinical psychologist, consultant clinical psychologist at Synapse, and I do online sessions as well. So this is how my work looks like. ग्रेट, वंडरफुल। मिस फराह, ये बताइए, जिस तरह हम मेंटल हेल्थ को समझने की जब बात करते हैं इन लेमन टर्म्स, जैसे हमें कोई मेंटल इलनेस तो नहीं हो जाती जिसकी हम बात करते हैं। नॉर्मली तो मेडिकल टर्म्स के अंदर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हम अनहेल्दी फील कर रहे हैं, हमें डॉक्टर को रुजू करना है, हम उनसे कांटेक्ट करें तो हमें कोई मेडिसिन मिलेगी, नज़ला जुकाम ये सब। सो इन लेमन टर्म्स ये मेंटल हेल्थ क्या है, कैसे डिफाइन करेंगी आप इसको? Okay. So I think it's a very important क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि हम्म। हमारे यहाँ लोगों को लगता है कि मेंटल हेल्थ का मतलब है एक तो मेंटल हेल्थ तो जनरली है ना कि दिमागी सेहत कैसी है, ठीक है। दूसरा ये बिल्कुल। है कि मेंटल हेल्थ इज नॉट अबाउट नॉट हैविंग स्ट्रेसर्स, ठीक है। या फिर मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि बंदा है उसको कोई स्ट्रेसर नहीं होगा, वो हमेशा खुश रहेगा, वो अपना ऑप्टिमम लेवल दे रहा होगा। इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू कोप अप विद द सिचुएशंस इन अ बेटर वे। फॉर एग्जाम्पल कोई लाइफ में कोई स्ट्रेसर आ गया, कोई हम्म। ट्रॉमा आ गया, किसी की डेथ हो गई, कोई जॉब चली गई, कुछ भी हो गया, ठीक है। अब आप उस चीज को कैसे कोप अप करते हैं, उस पे डिफाइन किया जाता है कि आप मेंटली हेल्दी हैं या मेंटली अनहेल्दी है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम एक ही सिचुएशन के लिए, लेट्स सपोज समबडी हैज गॉन थ्रू एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा, इस स्ट्रक्चर को लेकर दो लोग एक ही घर में रहने वाले डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई ट्रॉमा के अंदर चले जाता है, पीटीएसडी हो गया उसे, ठीक है, और कोई बहुत हेल्दी वे में उसको कोप कर रहा है। सो आपकी कोपिंग डिफाइन करती है कि आप कितने मेंटली हेल्दी हैं। इट डज नॉट मीन दैट यू विल नॉट हैव स्ट्रेसेस इन योर लाइफ। मेंटल हेल्थ का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो बंदा हर वक्त खुश होगा, दे विल बी हैप्पी ऑल द टाइम, दे विल हैव नो स्ट्रेसेस इन लाइफ। It's just that how do you manage a tough day? How do you manage those stressors in a better way? ठीक है, आपकी कोपिंग डिफाइन करती है आप मेंटली कितने हेल्दी है और अनहेल्दी है। सो मेंटल हेल्थ ये है। अच्छा, नाउ योर माइंड एंड बॉडी दे बोथ आर कनेक्टेड एज वेल। सो जो मेंटली हेल्दी होंगे ना, तो दे विल बी एबल टू कोप देयर फिजिकल हेल्थ एज वेल। बट लेट्स सपोज इफ somebody is not healthy mentally, तो कहीं ना कहीं आपको नजर आना शुरू हो जाता है कि वो बॉडीली सिम्टम्स भी नजर आ रहे होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि जी फिजिकल एलिमेंट स्टार्ट हो जाती है। सो मेंटल हेल्थ इंटायरली नॉट डजंट मीन कि भाई बंदे की लाइफ में कोई स्ट्रेसर नहीं है और बंदा हर वक्त खुश है। इट एक्चुअली मीन्स दैट स्ट्रेसेस आएंगे बट यू आर एबल टू cope up with those stresses in a better way. सही। तो आजकल हम ये भी साथ साथ देखते हैं कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। जब आपने ये सब डिफाइन किया तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया कि मेंटल हेल्थ और वेलनेस की जब हम बात करते हैं तो ये सोशल मीडिया, बहुत सा प्रेशर काम का होता है, एक्सटेंसिव फैमिली कमिटमेंट्स हैं, और आप देखती हैं कि अक्सर सोशल मीडिया में पीयर प्रेशर या बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी काम कर रही होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं कंपैरेटिव एनालिसिस में या किसी डिफरेंट डायरेक्शन में लेके चली आती हैं। हाउ वुड यू रिकमेंड Hmm. फॉर एनी पर्सन कि वो अपने आप को मेंटल हेल्थ के लिए किस तरह से तैयार करे, कैसे मेंटली हम कह सकते हैं कि वो हेल्दी रहे, अच्छा सोचे, कुछ एक्सरसाइजेस हैं, कैसे हो सकता है ये? To be very honest, I think this is the most important element right now, because we live in a very noisy world. ठीक है, अगर हम सुबह हम्म। हमारा डे स्टार्ट होता है विद द फोन, नोटिफिकेशन, मैसेजेस, डेडलाइंस, समहाउ आपका सोशल मीडिया है तो कंपैरिजन भी बहुत ज्यादा है, एंड इट्स क्वाइट एग्जॉस्टिंग एज वेल। अभी मैं आई एम सीइंग फ्यू टीनेजर्स एज वेल, or there is a continuous complaint कि I'm not doing enough,
आजकल ये जो वर्ड चल रहा है ना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हम्म। दैट ऑल्सो टेक्स अवे अ लॉट ऑफ योर एनर्जी. सो देखिए, ये एक वो डिलेमा है जिससे हम अपने आप को आइसोलेट भी नहीं कर सकते कंप्लीटली. वी कैन नॉट टेल समबडी के ओ आप जो है वो सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ दें, and आप स्क्रीन बिल्कुल छोड़ दें, बिकॉज अब बिल्कुल हम अपने आप को इस प्रोसेस से एलिमिनेट नहीं कर सकते. लेकिन व्हाट वी कैन प्रोबेबली डू इज टू कंटेन आवर मेंटल हेल्थ इन अ बेटर वे. एक तो कुछ ऐसा टाइम होना चाहिए जिसको हम कहते हैं ना, नो स्क्रीन फ्री जोन काइंड ऑफ टाइम. ठीक है, आपकी अपनी रूटीन में से आपने वो टाइम निकालना है. सेकंड, यू नीड टू पॉज. ये जो हमारे ना, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, स्पेशली हमारी सोसाइटी के अंदर, कराची के अंदर, पीपल आर वेरी लाइक हेस्टी. लग रहा है भाग रहे हैं, हर बंदा भाग रहा है. एवरीथिंग इज सो रेस्टलेस. कोई पॉज नहीं करता. ठीक है, so just pause and sometimes also think कि whatever you're doing, is it worth your energy? For example, जो टाइम हम लगा रहे हैं उससे मुझे क्या फायदा है और क्या नुकसान है. मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो क्या मैं कुछ अवॉइड कर रहा हूँ या मैं कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ. समटाइम्स जब हम स्क्रॉलिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो वी ऑल्सो गेट टू सी अ लॉट ऑफ अटेंशन डेफिसिट एज वेल, in kids and in teenagers. So we need to figure out कि how is it impacting your daily life. कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि we are unable to handle our life and time in a proper way. So we also assess कि उनकी एनर्जी कहाँ कहाँ जा रही है, वो कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और वो जो वेस्टेज ऑफ टाइम है उसकी लाइक क्लैरिटी क्या है. So, the lot of things that needs to be done. पहले तो जो important element करना है वो ये है कि free zone from screen, be it like 10 minutes. उसमें आपने कुछ नहीं करना. I remember I had this client who came to me, a woman, juggling up with so many things. Kids हैं, office है, घर की चीजें हैं, and very stressed, very anxious mother. एंड आई टोल्ड हर कि कुछ नहीं करना है, आपने दिन में एक वक्त ऐसा निकालना है जो कि आपका डिस्ट्रैक्शन फ्री होगा, इन विच यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, बी इट लाइक 10 minutes. शी स्टार्टेड डूइंग इट फॉर 2 weeks. उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ शाम में एक वक्त रख लिया था जिसमें मैं चाय बालकनी में बैठ के अकेले पीती थी, एंड आई जस्ट फोकस्ड ऑन माई टी. दैट हैज चेंज अ लॉट इन आवर लाइफ. सो समटाइम्स we just need to step back, pause, take deep breath, and figure out कि हमारी लाइफ जा किस डायरेक्शन में रही है, and whatever we are doing, is it worth our energy or not? What is going to be the outcome of it? Sometimes जनरली हम साइकोलॉजी के अंदर अगर हम इस्लामिक अप्रोच यूज करते हैं तो हम कभी कभी, अगर मेरे क्लाइंट रिलीजियस एस्पेक्ट के साथ होते हैं, सो आई ऑल्सो टेल देम कि कोई भी नमाज लेके ना, उसमें आपने you just need to, after namaz, sit down for 5 to 10 minutes, और उसमें you just need to reflect on your whole day. ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसमें रिफ्लेक्शन करना है कि मेरा दिन कैसा गुजरा, um, मैंने क्या किया, what is my plan ahead, and then make a dua. And this is very very simple way to ground yourself. So these are few techniques that one can do, but रात को जैसे है ना, स्लीप मोड आप लगा दें ताकि यू डोंट गेट नोटिफिकेशंस until the morning. You don't have to see that screen. So these are few things that you can do to bring yourself back into a grounding mode, which will actually impact your mental health as well. अच्छा, एक बहुत important element मैं जी जी। नोटिस करती हूँ स्पेशली इन टीनेजर्स कि देखें जैसे स्क्रोलिंग बहुत ज्यादा है, एंड समटाइम्स आजकल गेमिंग वगैरह का भी मोड बहुत ज्यादा ऑन है. एवरीबडी इज इनटू गेमिंग. सो जब आप स्क्रीन एक्सेसिव स्क्रीन यूज करते हैं एट नाइट, तो आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर, आपका हार्मोन है जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन. जैसे आपकी वाइट स्क्रीन आती है ना, तो मेलाटोनिन रिड्यूस हो जाता है और वो आपको एक्टिव स्टेट में ले जाता है. ऑटोमेटिकली आपकी नींद में कमी आ जाएगी. you will मतलब kids come to us and they say that we are unable to sleep or we have difficulty falling asleep. So हम उन्हें कहते हैं कि जी आपने डिटॉक्स करना है, स्क्रीन डिटॉक्स करना है, कि एटलीस्ट 2 hours पहले या 1 hour पहले आप अपनी स्क्रीन को पुट असाइड, मे बी डू अ लिटिल
उसको हम कहते हैं स्लीप हाइजीन की टेक्निक्स आती हैं, जिसमें हम कहते हैं कि ओके इफ यू वांट टू रीड probably read a book, but don't watch screens. क्यों? ताकि आपकी बॉडी को ये महसूस हो कि नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू गो टू बेड, आपने कामिंग मोड आपका स्टार्ट हो जाए। सो मेलाटोनिन भी आपका रिड्यूस होना शुरू हो जाता है इफ यू हैव एक्सेसिव स्क्रीन टाइम स्पेसिफिकली एट नाइट। तो वो इन चीजों का थोड़ा बहुत ख्याल रखने की जरूरत है, जो कि आई थिंक विच एग्जॉस्ट पीपल अ लॉट। बहुत ही अच्छा आपने सजेशन दिया है मिस फरा। इनफैक्ट हम अक्सर ये कोट सुनते हैं कि कुछ ना करना भी कुछ करना है। सो वो जो आपने बात कोट की ना कि आप ही कुछ ऐसा टाइम हमारा होना चाहिए जिसमें हम सिर्फ बैठ के ना सुकून से अगले अपने आप से बात करें या कुछ सोचें, जस्ट पॉन्डर अपॉन व्हाट वी आर डूइंग और व्हाट वी हैव टू डू इन द फ्यूचर। और दूसरा जो आपने स्पेशली टीनेजर के बारे में बात की, हम मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ क्योंकि हमारे भी बच्चे अब इस एज में हैं और सारे इसमें हम देखते हैं कि यंगस्टर्स जो हैं वो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। ये अक्सर पेरेंट्स की ये बात कंप्लेन की फॉर्म में आती है कि हम किस तरह से इसको अवॉइड करें, क्या चीज़ें हैं। सो इट्स अ वंडरफुल सजेशन कि हम स्क्रीन टाइम को इतने घंटों पहले एटलीस्ट सोने से पहले बंद कर दें। हम कुछ पढ़ लें, कुछ बात कर लें, आपस में बैठ जाएं। मे बी दैट कुड ऑल्सो हेल्प। दैट्स वेरी वंडरफुल सजेशन। अच्छा, आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं अमूमन, या कोई ऐसी रिसर्च जो हमें ये बता सके कि एवरेज एज क्या होती है जिसमें हम देखते हैं कि लोगों को इस तरह के कंसर्न्स रेज होना शुरू हो जाते हैं आजकल? क्या ये बढ़ गया है या ये पहले कुछ और ट्रेंड था? और क्या ये किसी स्पेसिफिक जेंडर में हम देखते हैं ज़्यादा है, या मर्द औरत दोनों के अंदर ये कॉमनली पाया जाता है? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब जो है ना मेंटल हेल्थ या इमोशनल स्ट्रगल्स का कोई पर्टिकुलर एज रेंज सच नहीं रही है कि हम कहें कि सिर्फ इस पर्टिकुलर एज रेंज के अंदर लोग ज्यादा आते हैं। अभी आई एम गेटिंग टू सी अ लॉट ऑफ किड्स, ऑब्वियसली वो पेरेंट्स उनको लेकर आ रहे हैं बिकॉज आजकल हमें न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस, जिनको हम कहते हैं कि ये एडीएचडी ऑटिज्म वगैरह, ये बहुत एक्सेसिवली बढ़ गया है हमारी सोसाइटीज के अंदर। टीनेजर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक टीनेज हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड एज रही है, नॉट रिलेटेड टू जस्ट मेंटल हेल्थ बट इमोशनल स्ट्रगल्स काफी ज्यादा उसमें नजर आने लगती हैं, तो पेरेंट्स को स्ट्रगल होती है। अदरवाइज देखा जाए तो जो ट्रेंड हमें नजर आ रहा होता है वो 20 to 40 के दरमियान ज्यादा नजर आ रहा है। वाई? बिकॉज उस टाइम पे बहुत बड़े लाइफ चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका करियर सेटल होना है, रिलेशनशिप सेटल होना है। यूजुअली पीपल गेट मैरिड ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, वो अपना बिजनेस सेट कर रहे होते हैं। आइडेंटिटी, जो हम कहते हैं ना आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन, वो स्टार्ट हो जाती है कि जी आपकी हु यू आर एंड व्हाट यू वांट टू बी। ये वो हम्म। वाली एज है, ये स्पेशली ये जो यंग अडल्ट एज है 20 to 25, 18 to 25 आई वुड से। इस एज में आप अपनी अपने पेरेंट अपनी फैमिली से डिटैच होकर अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना शुरू करते हैं। एंड दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट बिकॉज यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हु आई एम, और मेरे ऑब्वियसली मेरी फैमिली बिलोंगिंग क्या है। मैं अगर मैं फैमिली के साथ नहीं होता तो एज एन इंडिविजुअल मैं कौन हूँ। सो इस जगह पे हमने बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज और कंसर्न्स नोटिस किए हैं। अदरवाइज यस, टीनेज इज currently the most complicated age at the moment, जहाँ पे बहुत सारी इमोशनल स्ट्रगल्स हम देख रहे हैं। उसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी है, उसमें आपको kids become more oppositional as well, they need certain kind of control. So ये वाला जो ट्रेंड है वो हमें नजर आ रहा है। इसका तो रीजन क्या है कि क्यों इतना बढ़ गया है? आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज द अवेयरनेस हैज इंक्रीज्ड, प्लस सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने हर चीज को एक ट्रॉमा बना लिया। पुराने जमाने में हम उन्हीं चीजों को रेजिलियंस के नाम से बोलते थे कि जी ओ लेट्स सपोज इफ यू कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम, तो आप कितने रेजिलियंट है। लेट्स सपोज किसी ने आपको बुली किया तो वो उसको हैंडल कर कर आते थे। आजकल a lot of things has become more emotional and dramatic. We have given certain, इसी वजह से मैंने कहा था मेंटल हेल्थ को हमने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है बिकॉज हमने नॉर्मल चीजें जो हमारी जनरेशन ने ओवरकम की थी वो अब नई जनरेशन उनको दे आर अनएबल टू हैंडल दोस
simple things as well. Or you asked also KG gender wise. जी To be very honest, what I'm getting to see is, या generally trend नजर आता है, researchers जो कहती हैं कि women tend to express their emotions more openly compared to men. ठीक है? So women usually talk about their emotions. So इस वजह से अगर हम कहें तो हमारे पास female client, female version, women are more, they come for therapy more compared to men because men के अंदर उनको they've been brought up in a way that they have to stay ई strong and they have to man up and वो कहते हैं ना लड़के रोते नहीं हैं और जी जी ईगो आ जाती है ना। and exactly और बहुत सारे they're being bullied by it। मतलब हमारे पास ऐसे teenagers भी हैं जिनको आप कहते हैं कि वो तुम you're like a क्या mommy's baby हो and sissy। I mean these kind of terms are being used for those boys who are more emotional, right? So they internalize those emotions and they express it in the form of anger या irritation। ठीक है? हमारे पास लिटरली कभी कभी ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जो जिन कंप्लेंट्स के साथ आते थे वो ये होता था कि जी एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, इरिटेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, ईगो लाइक वो छोटी छोटी बात जो है ना वो ईगो हर्ट कर देती है। एंड लिटरली व्हेन वी गो डाउन इनटू थेरेपी उनकी सैडनेस comes or turns out in the form of anger, उनके trauma turns out in the form of anger. So anger is a secondary emotion for men. प्राइमरी इमोशन हमेशा से कुछ और होता है जिसको वो डील नहीं करना चाहते, सो वो अवॉइडेंट हो जाते हैं। और विमेन ओके इंटरनलाइज करती हैं, दे वांट टू टॉक अबाउट थिंग्स। सो ये डिफरेंसेस हैं जो हम थेरेपी के अंदर देखते हैं। इसीलिए अगर क्लाइंटल देखे जाएं तो फीमेल्स आर मोर, दे रीच आउट फॉर थेरेपी मोर कंपेयर टू मैन। अच्छा मिस फरा, इसकी अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे आपको लगता है, जिस तरह आपने कहा ना कि टीनेजर्स जो हैं वो पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, उनको मिलना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए, जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है ये बढ़ता जा रहा है और ये अच्छी बात है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि पहले तो ये कहा जाता था कि भाई आप पागल हो गए हैं तभी आप जाएंगे साइकोलॉजिस्ट। मतलब मैं बहुत सालों पहले की बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली अब इतना नहीं रहा ये सिलसिला, लेकिन जब भी कोई कहता है ना मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, तो स्पेशली आपने जैसे मर्दों की बात की तो इसमें पागल हो गए हो, पता नहीं क्या मसला है, क्या इश्यूज हैं, ऐसा क्या मसला है, घर में कोई प्रॉब्लम है तो हमसे डिस्कस कर लो, या सब छोड़ो ऐसे ही चलते हैं, शुगर लगाते हैं, ये सारी चीज़ें, या वी हेयर दीज काइंड ऑफ टर्म्स। सो ये अवेयरनेस और बढ़नी चाहिए, क्या आपको लगता है ये और ज़्यादा फैलनी चाहिए? ऑनेस्टली स्पीकिंग नो डाउट इन दैट कि हमारे पास बहुत ही स्पेशली पोस्ट कोविड बहुत ज्यादा नंबर इंक्रीज हुआ है वेयर पीपल आर रीचिंग आउट फॉर थेरेपी, नॉट जस्ट बिकॉज के उन्हें एंजाइटी है, डिप्रेशन है या कोई डिसऑर्डर है, बट फॉर जनरल लाइफ इश्यूज एज वेल। लेकिन अभी भी ये स्टिल टैबू है कि जहाँ पे देखिए अभी जो है ना वो स्पेशली मैंने जो ट्रेंड नोटिस करना शुरू किया है, मेंटल हेल्थ और थेरेपिस्ट के पास जाना हैज बिकम अ ट्रेंड। और ये ट्रेंड एक सर्टेन क्लास फॉलो कर रही है, बट जहाँ रियल इश्यूज है ना, जहाँ पे हमें हमें लगता है कि वो इंटरजेनरेशनल इश्यूज चल रहे हैं, फैमिली डायनामिक्स के इश्यूज चल रहे हैं, अभी भी वहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना इट्स स्टिल अ टैबू। लोग हम्म सफर करते हैं। वो कहते हैं ना स्पेशली थेरेपी में सारे वो लोग आते हैं जिनको शायद नहीं आना चाहिए, पर वो नहीं आते जिनको आना चाहिए था, जिनकी वजह से सारे लोग सफर कर रहे हैं। सो अभी भी ऐसा है कि टैबू है, अभी भी लोग उसको क्वेश्चनेबल बनाते हैं कि ओ व्हाई मी, मैं तो पागल नहीं हूँ। बट स्टिल अगेन नो डाउट इन दैट काफी अवेयरनेस बढ़ी है, काफी चीजें चेंज हो गई हैं, इंशाल्लाह इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। But still we do face those issues where people come and say कि oh, and even sometimes ऐसा भी होता है कि हमारे पास बच्चे आ रहे होते हैं, like पेरेंट्स बच्चों को लेकर आ रहे हैं, बट when we pinpoint कि okay now there is some issue जो कि बच्चे में नहीं है और हो सकता है फैमिली डायनामिक में हो, so they are unable to accept that। अच्छा one more thing that I think is very very important जो कि I think it's needed to be discussed।
अच्छा जी देखें, जी एक श्योर। सबसे ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। आई थिंक इट्स ओवर द स्पैन ऑफ 80 years एंड उसका जो मेन कंक्लूजन था ना वो ये था कि इट डजंट मैटर कि हाउ मच मनी यू हैव एंड हाउ मच करियर ओरिएंटेड और हाउ सक्सेसफुल यू आर। in the end, if you want to be happy, or all those people who were happy, they had good relationships. उनकी लाइफ में कोई एक बंदा लाजमी ऐसा है जिसके साथ वो ओपनली अपने इमोशंस को डिस्कस कर सकते हैं, बी इट लाइक सिबलिंग, पेरेंट्स, स्पाउस, फ्रेंड, एनीबडी। ठीक है। और उस रिसर्च का जो मेन कंक्लूजन मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ उसमें ये था कि जी रिलेशनशिप मैटर्स करते हैं फॉर फॉर यू टू बी हैप्पी एंड टू हैव अ हेल्दी लॉन्ग लाइफ। सेकेंड थिंग इज कि वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोज रिलेशनशिप, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वो जानने वाले लोग नॉर्मल। इट्स मोर लाइक कि आपका जो ग्रुप है उसमें क्लोज रिलेशनशिप्स कितने हैं, बी इट 1% और 15%। अगर आपके पास क्लोज नेटेड रिलेशनशिप है तो आप यू विल बी मोर हैप्पियर कंपेयर टू इवन इफ यू हैव मनी और यू। सो अभी जब हमारे पास थेरेपी के लिए लोग आते हैं वी ऑल्सो गेट टू सी दैट दे हैव एवरीथिंग इन देयर लाइफ, मनी, सक्सेस, एवरीथिंग, बट दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज चीजें हैं बट चीजों को इस्तेमाल करने के लिए। अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना डिटॉक्स करने के लिए रात को बैठे, I जी जी। usually suggest it to my clients and families कि आप जो है वो रात में कोई भी एक बोर्ड गेम खेल लें। कोई ऐसा कोई भी मतलब when we were growing up मुझे याद है कि हम फैमिली बैठते होते थे, कभी वो अंताक्षरी चल रही है कि जी सॉन्ग नेम प्लेस एनिमल थिंग चल रहा है, या कोई ना कोई रिडल्स चल रही होती थी, एंड यू नो सम फैमिली बॉन्डिंग टाइम विदाउट फोन्स, be it like 10 minutes to 30 minutes, it adds so much value in your mental health that you can't even imagine. Specifically for kids, अगर आप उनको सिर्फ one on one 10 minutes देना शुरू कर दें or you just let them talk about their emotions, we have seen drastic change in their emotional well-being. So ये जो है ना being close knitted relationships, spending quality time with each other, they have an greater impact on your mental health. वंडरफुल। मिस फारा, इससे कनेक्टेड दो क्वेश्चंस जुड़ते हैं जो मैं आपसे पूछना Hmm. चाहूँगा। एक तो ये कि जिस तरह आपने कहा कि इसकी नीड है और ये और बढ़ता जा रहा है। सो जो यंगस्टर्स इस प्रोफेशन में करियर बनाना चाहते हैं Hmm. उनके लिए क्या ऐसे पॉइंटर्स हैं? बिकॉज आपने देखा है जब हम करियर काउंसलिंग में स्पेशली जब हम देखते हैं वो हमारा एरिया ओवरऑल एज ए कंट्री वीक है। बच्चा जाता Hmm. है, ए लेवल्स किया या इंटरमीडिएट किया या उसके बाद वो जाकर यूनिवर्सिटीज़ के इश्तिहार देखते हैं और फिर उसमें बाद में पता चलता है कि पता नहीं एचईसी या कोई ऐसी बॉडी जो साइकोलॉजी के हो, जैसे मेडिकल में हैं, इस तरह से लॉयर के अंदर हैं, इंजीनियरिंग के अंदर हैं। तो आपके प्रोफेशन के अंदर भी कोई ऐसी सोसाइटी जिसके थ्रू यूनिवर्सिटीज़ रजिस्टर्ड होती हों और जिससे रिकग्निशन बच्चों को मिले कि हाँ ये यूनिवर्सिटी से मैं कर रहा हूँ तो वेल रिकग्नाइज है और कहीं भी आगे क्वेश्चन नहीं होगा। Okay, अ, I think a जी very जी। important question. I hope you ended the question or may I start यस करिए? यस प्लीज गो अहेड। Okay, all right. Very important question because to be very honest, ये पहले जो हमारी legislative body थी वो पहले नहीं थी, अब recently government so yes, it's a very important question because पहले हमारी regulatory body मौजूद नहीं थी। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अलाइड हेल्थ के नाम से उसको रजिस्टर किया है एंड उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हों। डोंट गेट टेक एडमिशन इनटू एनी ले वो जो हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। अब तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ओपन हो गए हैं, जैबस ने स्टार्ट कर दिया, आईओबीएम ने स्टार्ट कर दिया, वरना पहले देयर वर जस्ट 2-3 साइकोलॉजी बेस्ड यूनिवर्सिटीज।
So HEC recognized हो, in which you have to, I mean, better that you do BS 4 years BS program आप करें, उसके बाद आप either you do MPhil or MS. There are 2 years program for you to be able to practice clinically, right? MPhil में ये होगा कि आपका it's more research based, MS is more clinical based. It depends on you what you're more interested in, either research or clinical. But unless and until you don't complete your 18 years of degree, you won't be able to recognize yourself as a clinical psychologist, or you won't be able to practice. For practice, you need to have at least 18 years of degree from a recognized HEC recognized university. And then you have to apply for allied health. Once you get your degree, then you will apply for allied health. वो अपना एक पूरा, they run a system, and for like 3 to 4 months, and then you get a certificate. So it's important. Priorly, अगर आप BS के लिए admission ले रहे हैं, so priorly you don't need to have psychology as background. आप social sciences में हैं, आपने engineering किया है, medical किया है, तब भी आप psychology के अंदर admission ले सकते हैं. ओके ग्रेट। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि बैचलर्स के बाद यू आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, राइट? No, you cannot. You even can't call yourself as clinical psychologist. Okay, so that's just a bachelor's degree in psychology which gives you a Yes. basis. उसके बाद फिर आप Basis. बिल्कुल आगे कर। बिल्कुल। अभी हमारे यहाँ देखें, एक्चुअली इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली हमारे पास बहुत सारे क्वाक्स हैं, बहुत सारे लोग डिप्लोमा करके भी अपने आप को थेरेपिस्ट कहला रहे होते हैं, बट ऑब्वियसली एक रेगुलेटरी बॉडी अभी डेवलप हुई है, उससे पहले कुछ था नहीं. बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, यू नीड टू नो द क्रेडेंशियल ऑफ दैट थेरेपिस्ट. एडेड सर्टिफिकेशंस बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन जो उनकी बेसिक एजुकेशन है ना, वो एटलीस्ट MS MPhil होनी चाहिए फॉर यू टू कॉल योरसेल्फ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और फॉर यू टू प्रैक्टिस. ओके वंडरफुल। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें भी दो तरह की डिविजन्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैं तो इसमें बात किया कि एक तो है वो क्लिनिकली, जैसे हॉस्पिटल्स के साथ काम कर सकते हैं, और दूसरे जो हैं स्पेसिफिकली थेरेपिस्ट वर्जन में काम कर सकते हैं, ऐसा है या नहीं, दोनों एलिजिबल? अच्छा, देखें, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैन वर्क विद एज लाइक, देखें, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट आर द सेम, राइट? लेकिन ओके। ये जो साइकोथेरेपिस्ट वाला एलिमेंट है ना, दे आर मोर दोज पीपल who like usually they do a diploma for 2 years from different organizations, and then they call themselves as a psychotherapist, and they do one particular kind of therapy, which is psychotherapy. जो clinical psychologists हैं, they are actually trained to do different kind of therapies. जैसे हमारे पास psychotherapy आती है, हमारे पास CBT है, हमारे पास TBT है, and there are a lot of different kind of modalities that we work on. अच्छा, अब अगर देखा जाए तो बहुत सारी और डिफरेंट फील्ड्स ओपन हो गई ना, जैसे फोरेंसिक साइकोलॉजी है, विच इज मोर रिलेटेड टू क्रिमिनोलॉजी एंड ऑल ऑफ दैट. देन वी हैव यस। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी दैट वर्क्स इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो जो आपके उस पर्सपेक्टिव को लेके चलती है. देन देयर इज एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हु वर्क्स इन स्कूल्स. सो जो क्लिनिकल है, दैट यूजुअली वर्क्स विद क्लाइंट्स विद क्लिनिकल इश्यूज. Educational or automatically उस हिसाब से काम करेगा. So there are different kind of fields of psychology now in Pakistan as well. वाह वंडरफुल। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या ये रिसोर्सेस एक्सेसिबल हैं एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए, या ये पैसे वाले लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं सेशंस करवाना? Sessions करवाना. To be very honest, in Pakistan we have resources, like we have available resources, we have therapists जो कि sliding bar पे काम करते हैं. I mean, all those people who can afford, they charge good from them. All those people who cannot, they minimize their charges as well. हमारे पास ऐसे institutes भी हैं जो free of cost भी काम करते हैं. हमारे पास बहुत सारे ऐसे थेरेपिस्ट मौजूद हैं जो कि लिटरली प्रो बोनो काम करते हैं, ठीक है? So ऐसा नहीं है कि all those people who can afford, they can only go for therapy.
कोई भी जा सकता है। जीपीएमसी में बहुत अच्छा एक अभी उन्होंने डिफरेंट इट्स बिन 2-3 years ना, और उन्होंने बड़ा अच्छा एक सेटअप क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ भी काम किया जा रहा है। एंड देयर डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट्स। Specifically, I can talk about Karachi because I'm working in this area. बट अगेन ओवरऑल पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो प्रो बोनो फ्री ऑफ कॉस्ट भी साइकोलॉजिकल थेरेपीज देते हैं, और उनके स्लाइडिंग बार मौजूद है कि अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो उस हिसाब से चार्ज करेंगे, नहीं कर सकता तो वो मिनिमल कॉस्ट पे भी जाता है। ट्रस्ट मौजूद है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ अफोर्डिंग पीपल कैन टेक थेरेपी, एनीबडी कैन गो फॉर थेरेपी, एंड एनीबडी नॉट रिलेटेड टू लाइक आपको कोई मेंटल हेल्थ डिजीज होनी चाहिए। थेरेपी आप नॉर्मल डे की लिविंग लाइफ के लिए टू मेक इट एट एन ऑप्टिमम लेवल तो भी थेरेपी ली जा सकती है टू गेट बेटर क्लैरिटी इन योर लाइफ। सो थेरेपी कोई भी ले सकता है। Great. Ms. Farhat, so kind of you for your time. Thanks a lot. It was wonderful session. मैंने तो बहुत enjoy किया है. Pretty much hopeful listeners के लिए बहुत knowledgeable, fruitful session रहा होगा. और इस तरह से हम लोगों को invite करते हैं ताकि questions जो normally audience हमें भेजती रहती हैं हम उनसे पूछ सकें, और youngsters के लिए तो especially बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के हम और sessions करते रहें. Again, so kind of you. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। So, सामीन, आपका शुक्रिया। आपने इस तरह के प्रोग्राम को सराहा, हमारी हौसला अफजाई की, और हम अगले एपिसोड तक के लिए आपका शामिल कहते हैं आपको, और अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। थैंक यू सो मच।